Good morning, students. Today we are going to start the new topic, and that is Fayol Principles of Management. Henry Fayol was born in France in 1841. He got a degree in mining engineering in 1860 and started working as a coal mining engineering in the company. After some time, he promoted as a managing director of the company. At the time, the situation of the company was not so good, and in fact, it was in the situation of insolvency. He accepted the challenge and applied some techniques which bring out the company from that situation, and he succeeded. When he retired from that company, the company has a sound financial background. He is also called as the father of management studies and thoughts. The contribution of Henry Fayol was he made clear distinction between technical and managerial skill. And next, he identified the main step of process of management, and that is planning, organizing, staffing, directing, and controlling. And the last one is he developed 14 principles of management which act as a guideline for the managers to perform managerial activities. आज हम लोग सभी नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम सभी एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फियोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फियोल का जन्म फ्रांस देश में 1841 में हुआ। उन्हें माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त थी और कुछ समय बाद उन्होंने एक कोल माइनिंग कंपनी में काम करना शुरू करा बतौर इंजीनियर। कुछ समय बाद उन्हें उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाता है। उस समय कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि उस समय कंपनी जो थी वो इंसॉल्वेंट होने वाली थी। उन्होंने उस चैलेंज को स्वीकारा और अपनी टेक्निक्स से वो सक्सीड हुए और कंपनी जो थी वो इंसॉल्वेंसी की कंडीशन से बाहर आ गई। कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफ़ी साउंड हो गया और जब वो रिटायर हुए तो एक लीडिंग कंपनी के तौर पे जाने लगी जो एक साधारण सी कंपनी थी। हेनरी फियोल को फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता था। उन्होंने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए मैनेजमेंट को लेकर जो कि इस प्रकार थे। पहला ये था कि उन्होंने ये स्पष्ट किया कि टेक्निकल स्किल्स और मैनेजरियल स्किल्स दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। उन्होंने दूसरा कंट्रीब्यूशन ये दिया कि एक जो मैनेजमेंट की प्रोसेस है उसे स्पेसिफाई करा और उसे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के तौर पे लाया गया। पहली प्रोसेस का जो पहला स्टेप था वो ये था प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग और लास्ट वन इज़ कंट्रोलिंग। एक ही प्रोसेस के ये अलग अलग स्टेप होते हैं। लास्ट कंट्रीब्यूशन उनका ये था और यही कंट्रीब्यूशन उनका सबसे बड़ा था कि उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किए जो कि एक गाइडलाइन की तरह काम करते थे, किसी भी मैनेजर की हेल्प करते थे हर अलग अलग सिचुएशंस में। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, फोर्थ वन इज़ यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ वन इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स्थ वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट, seventh one is principle of remuneration of person, eighth one is principle of centralization and decentralization, ninth one is principle of scalar chain, 10th one principle of order, 11th one principle of equity, 12th one principle of stability and tenure of personnel, 13th one principle of initiative, and the last one is principle of esprit de corps. These are the 14 principles mentioned by Henry Fayol. Now, principle of division of work. Henry Fayol recommended that different kind of work must be divided and allocated to number of person. Subdivision makes each task simpler, which results greater efficiency. Each employee should be trained in the job that he has to perform. Division of work helps in specialization and result in increased output by making employees more efficient. For example, if one person is skilled in computer programming and continues to do that over a period of time, this continuity of computerized work specializes him in that job and consequently improves his performance. डिवीजन ऑफ वर्क में हेनरी फियोल ये कहना चाहते हैं कि जो भी काम मैनेजर के पास अवेलेबल होता है उसे उन्हें अलग अलग लोगों में बांट देना चाहिए। काम बांटने से जो वर्क है वो सरल भी हो जाता है और व्यक्ति जो है ज़्यादा स्पीडली ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से उस काम को कर पाते हैं। आप जिस भी व्यक्ति को काम बांट रहे हैं उसे उस जॉब की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जिस भी व्यक्ति को जो काम बांट दिया जाता है वो उस वर्क के लिए स्पेशलाइजेशन
या स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, मतलब उस काम को करने में मजबूत हो जाते हैं, जिससे कि हमारे जो रिज़ल्ट हैं वो बढ़ जाते हैं, जो आउटपुट है वो भी ज़्यादा आता है और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ज़्यादा कुशलता से काम कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एक्सपर्ट है और अगर आप उसे लंबे समय तक कंप्यूटर से रिलेटेड ही वर्क देते आएंगे तो वो उस वर्क में काफ़ी मजबूत हो जाएगा, काफ़ी कुशल हो जाएगा, जिसके कारण उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी होगी। प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हियर ऑथोरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, responsibility means obligation to complete the job assigned on time. According to this principle, there must be a balance between the authority and responsibility. Excess of authority without matching responsibility may bring negative results. देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन लेने की पावर होना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये मतलब होता है कि आपको जो भी काम दिया गया है आपको उसको समय पर समाप्त करना होता है। इन दोनों ही प्रिंसिपल्स के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी होता है, मतलब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में ही आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। अगर आप उसको प्रॉपर बैलेंस नहीं करेंगे तो ये हो सकता है कि बहुत सारे झगड़े हो सकते हैं, फर्म में, कंपनी में विवाद हो सकते हैं, और जो कि नेगेटिव रिजल्ट्स की तरफ आपको आगे ले जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह से आपके माध्यम से क्लियर कर देती हूँ। मान लीजिए कि एक प्रोडक्शन मैनेजर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे एक महीने में 1000 व्हीकल्स बनाने हैं, पर अगर मान लीजिए कि आपने उसको केवल रॉ मटेरियल 500 व्हीकल्स का ही खरीदने को ऑथोराइज़ किया है, तो जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो कभी भी प्रोडक्शन टारगेट को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसीलिए जितनी भी आप अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हैं उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है, तो आपको उतनी ही अथॉरिटी डेलीगेट करनी चाहिए जितनी कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे क्रिएट कर देंगे। मतलब कि अगर आपको 1000 व्हीकल बनाने हैं तो आपको सामने वाले व्यक्ति को ऑथोराइज़ करना चाहिए कि आप 1000 व्हीकल बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीद पाएँ, अदरवाइज इट विल नेवर बी पॉसिबल टू कंप्लीट द टारगेट विद इन अ गिवन पीरियड। आप कभी भी अपने टारगेट को प्रॉपर टाइम पे फुलफिल नहीं कर पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रेफर्स टू जनरल रूल्स regulations for systematic working in an organization. Fayol insists that discipline is required at superior as well as subordinate level. The disciplinary rules shall not be applicable only on subordinate, but discipline requires good superior at every level. The positive effect of these rules are smooth and systematic working of an organization, better labor management relations, better reputation of the organization among the people. Last one is clear and written rules eliminate cause of suspicion and misunderstanding. देखिए यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब जनरल रूल्स और रेगुलेशंस से है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं सिस्टमेटिक वर्क करने में। डिसिप्लिन हर लेवल पे ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन केवल सबऑर्डिनेट लेवल के लिए हो, ये हर लेवल पे, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, बॉटम लेवल हो, हर लेवल पे डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज़ अ मस्ट। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क होता है वो काफ़ी स्मूथली चलता है और सिस्टमेटिक तरीके से होता है। लेबर और मैनेजमेंट के जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन है वो भी लोगों में मेंटेन होती है, और सबसे बड़ी बात यह कि डिसिप्लिन का ये फ़ायदा होता है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होती है वो नहीं हो पाती, क्योंकि जो भी रूल्स वगैरह रहते हैं वो क्लियर और रिटन फॉर्म में रहते हैं। इसीलिए जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो रहती है उसका कॉलम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। If an employee receives instructions or orders from more than one superior or manager, there is likely to be a confusion and conflict. For example, if an employee of production department is asked to go slow in production to maintain the quality and standard by the production in charge, and sales in charge instruct the employee to fasten the production to meet the pending order, in that situation, definitely the employee will get confused as to whose instruction must be followed by him. देखिए इस प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि जो भी एम्प्लॉय होता है उसे केवल एक ही व्यक्ति को इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए। अगर कोई दो
मैनेजर एक कर्मचारी को इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो कर्मचारी जो रहेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको ये समझ ही नहीं आएगा कि मुझे किसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं और किसके नहीं करने हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है और वो एम्प्लॉय को कहता है कि आप प्रोडक्शन थोड़ा स्लो करिए ताकि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी और स्टैंडर्ड है उसे मेंटेन किया जा सके। और उस सेम टाइम पे अगर सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर ये कहेगा एम्प्लॉयज़ को कि आप प्रोडक्शन जल्दी कीजिए ताकि जो हम हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उसे कंप्लीट कर सकें, तो उस टाइम पे जो एम्प्लॉय हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे और उनको यही समझ में नहीं आएगा कि प्रोडक्शन हमें जल्दी करना है या देर से करना है, और वो काम को नहीं कर पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वन यूनिट मीन्स वन प्लान, दैट इज़ द एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन must be directed towards one direction, that is the achievement of a common goal. If this principle is applied, it leads to coordination. Each department and a group having common objective must have one head and one plan only. इस प्रिंसिपल के बारे में ये कहा गया है कि वन यूनिट के पास एक ही प्लान होना चाहिए। मतलब अगर एक कोई ग्रुप है तो उसके पास एक ही प्लान होना चाहिए और उस ग्रुप को उसी डायरेक्शन में काम करना चाहिए ताकि आप जो गोल है उसे अचीव कर पाएँ। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें बहुत सारे ग्रुप होते हैं, पर हर ग्रुप को अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उसके फुलफिलमेंट पे पूरा जोर देना चाहिए ताकि जो भी हमें काम दिया गया है वो समय पे पूरा हो सके। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ और मेंबर्स काम करते हैं, पर सभी का जो डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए, जो गोल है वो कॉमन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इन ऑन अ गिवन टाइम। Principle of remuneration of person. In Fayol's view, remuneration of employee should be fair and reasonable. Remuneration and methods of payment should be fair and provide maximum satisfaction to the employees and employer. Injustice to any may demotivate employees to perform to the best of their capacity. For example, profits earned by the firm should not be go entirely to the shareholders and managers as a commission, but it should be fairly distributed among all the concerned, including workers on the reasonable basis. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है उसमें सभी एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स जो रहते हैं वो सभी मिल के मेहनत करते हैं, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन में ये कहा गया है कि जो भी रेम्यूनरेशन एक फर्म प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयज़ को वो फेयर होना चाहिए और जस्टिफाइड होना चाहिए। मतलब उसमें किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर आप पक्षपात करेंगे तो जो आपके एम्प्लॉयज़ है वो डिमोटिवेट हो जाएंगे और काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट ऐसा नहीं कि आप सारा शेयर होल्डर्स को दे दें या मैनेजर को कमीशन दे दें। आपको एज अ बोनस जो फेयर बनता है एम्प्लॉयज़ को भी देना चाहिए और अपने वर्कर्स को भी देना चाहिए, क्योंकि वो भी उसी ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, और उन्होंने भी उतनी ही मेहनत की है जितनी किसी मैनेजर ने या शेयर होल्डर ने की होगी। इन प्रिंसिपल से रिलेटेड आपको जो भी डाउट है आप लोग मुझे मैसेज करके और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।